یہ خوشحال بہن نے اپنی شادی کے موقع پر اپنے غریب اور مجبور بھائی کو بلانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کی عزت پر حرف نہ آ جائے، مگر بھائی کا دل نہ مانا تو وہ خاموشی سے پرانے کپڑے پہن کر تقریب میں پہنچ گیا۔ دور ہی سے سب کچھ دیکھتا رہا اور آخرکار بہن کو ایک سلامی کا لفافہ دے کر بغیر کچھ کہے واپس لوٹا گیا۔ بہن نے جب وہ لفافہ دیکھا تو غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات میں سب کے سامنے اسے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا، مگر جیسے ہی لفافہ کھولا اس میں سے کوئی رقم یا چیک نہیں بلکہ ایک پرانی سی رسید نکلی۔ مہمانوں میں سے کسی نے وہ رسید اٹھا کر پڑھنا شروع کی اور چند ہی لمحوں میں محفل کا ماحول بدل گیا۔ بہن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بے اختیار رونے لگی، کیونکہ اس رسید میں اس کے بھائی کی بے بسی اور محبت کی پوری کہانی درج تھی۔ رسید میں لکھا تھا کہ وہ فیکٹری سے مایوس ہو کر نکلا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کا مالک اسے 3 لاکھ کا قرض دے دے گا تاکہ وہ اپنی بہن کے لیے ایک قیمتی تحفہ لے سکے، مگر اسے صاف انکار کر دیا گیا۔ ہاں، اسے صرف 30,000 دینے کی بات ہوئی، وہ بھی اس شرط پر کہ 1 مہینے میں واپس کرنا ہوگا۔ وہ سوچتا رہا کہ اتنی معمولی رقم سے وہ کیا کر پائے گا، جبکہ اس کی بہن کی شادی تھی، وہ بہن جس نے زندگی بھر محنت کر کے اپنا مقام بنایا تھا، اور اب اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بہن کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالے گا، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک کسی نے اسے آواز دی۔ وہ رکا اور پلٹ کر دیکھا تو محلے کا ایک شخص تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے قریب آتے ہی مبارکباد دی اور خوشی سے بولا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی بہن اتنے بڑے گھرانے میں بیاہی جا رہی ہے۔ بھائی نے حیرت سے اس کی بات سنی اور آہستہ سے کہا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، صرف تاریخ طے ہوئی ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ مگر وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا کہ یہ تو طے ہے، اسے قسمت بار بار نہیں بدلتی۔ اور بھائی خاموش کھڑا اپنی قسمت اور حالات کے بیچ الجھا رہ گیا۔ وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھ کر بولا، یار شادی تو آج ہی تھی، ہم سب کو بلایا گیا تھا، میری بیوی تو خاص تیاری کر کے گئی تھی، سب یہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن نے دل کھول کر خرچ کیا ہے، تم کہیں دکھائی نہیں دیے، اس لیے سوچا راستے میں ہی مل جاؤں تو مبارکباد دے دوں۔ اس کی بات سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ میرے ذہن میں فوراً عیوشا کا وہ پیغام گونج اٹھا جس میں اس نے شادی کی تاریخ اگلے ہفتے بتائی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ کیا اس نے جان بوجھ کر مجھ سے سچ چھپایا تھا؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی خوشیوں میں شریک ہوں؟ یہ خیال آتے ہی آنکھیں بھیگنے لگی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس شخص کے سامنے اپنے جذبات ظاہر نہ ہونے دیے۔ خاموشی سے اس کی مبارکباد قبول کی اور دھیرے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ در حقیقت جب سے میری بہن نے ملازمت شروع کی تھی ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب اس کا یہ مقام ہے، ایک پہچان ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یہ کام سی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کے ساکھ متاثر ہوگی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے دور رہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم دن پر بھی مجھے نظر انداز کر دے گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تیزی سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ہی میری بیوی کا فون آ گیا۔ میں نے فوراً کال اٹھائی تو دوسری طرف اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کاشف جلدی سے گھر آئیں، چھوٹی لینا اچانک سے گر گئی ہے، اس کے سر پر کافی چوٹ آئی ہے، میں اسے قریبی کلینک لے آئی ہوں، مگر وہ کسی سے سنبھل نہیں رہی، بس روتے ہوئے آپ کو ہی پکار رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تیزی سے گھر کی طرف بھاگ پڑا، جیسے اب میری ساری دنیا صرف ایک ہی جگہ سمٹ آئی ہو۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فاصلہ طے کر لیا جہاں میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اندر سے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی اور گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنی بیٹی کے پاس جا پہنچا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر بے بس لیٹی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور زخم اتنا گہرا تھا کہ دیکھ کر ہی روح کانپ جائے۔ میں فوراً اس کے قریب جھکا اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ زاروں خطا رونے لگی۔ میری بیوی کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔
اس کی آنکھیں مسلسل اشکبار تھی۔ ارد گرد محلے والے اور سسرال کے لوگ کھڑے تھے، سب پریشان تھے، مگر جن کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نہ میری ماں آئی تھی، نہ باپ، اور نہ ہی وہ بہن جس کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ امی کو خبر دی تھی؟ اس نے ازبات میں سر ہلایا اور برائی ہوئی آواز میں بولی، سب سے پہلے انہیں ہی فون کیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، جیسے ہی فارغ ہوں گی آ جائیں گی۔ یہ سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے خاموشی سے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے اسے اپنے وجود میں چھپا لینا چاہتا ہوں، شکایت بھی کسی سے کرتا۔ میری اپنی بہن نے مجھے اپنی خوشیوں سے دور رکھا، اور ماں کو بھی ایک لمحے کے لیے میرا خیال نہ آیا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ غربت انسان کو صرف تنگ حال نہیں کرتی بلکہ اپنے ہی رشتوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ میں کافی دیر تک اپنی بیٹی کے پاس بیٹھا رہا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر میں نے وہاں موجود لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بروقت میرا ساتھ دیا۔ سب نے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا اور ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے سب یہی کہہ رہے، کاشف بھائی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھرا ہوا گھر ایک بار پھر سنسان ہو گیا اور میں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کے ساتھ وہی بیٹھا رہ گیا۔ میری بیٹی دوائیوں کے اثر سے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں صحن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میری بیوی بھی فوراً میرے پیچھے آ گئی۔ میرے دل میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، میں اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں مجھے اس خوشی میں شامل ہونے کے قابل بھی نہ سمجھا۔ میں انہی سوچوں میں گم نل کے پاس جا کر رکا تاکہ منہ ہاتھ دھو سکوں، مگر میری بیوی بھی وہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پریشان لہجے میں بولی، کیا ہوا ہے؟ جب سے آپ آئے ہیں بہت بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ گڑیا کو بھی آپ نے ویسے پیار نہیں کیا جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، کوئی بات ہے کیا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کافی تھا کہ میرے اندر دبا ہوا سب کچھ ٹوٹ کر باہر آ جائے۔ آنکھیں بھر آئی اور میں بغیر کچھ کہے اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتے، خاص طور پر وہ جو اپنے ہی رشتوں سے ملے۔ میں نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور اس نے جان بوجھ کر مجھے اس دن سے دور رکھا صرف اس لیے کہ میں یہ کام سا آدمی ہوں اور وہ اب ایک امیر گھرانے کا حصہ بن چکی ہے۔ میں نے کہا، یہ صرف میرا دل نہیں توڑا اس نے، بلکہ لوگوں کے سامنے میری حیثیت کو بھی مذاق بنا دیا۔ آج محلے میں سرفراز ملا، اس نے مبارکباد نہیں دی بلکہ ایسے بات کی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، جیسے میں اس کا بھائی ہی نہیں۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں مزید کہا، اگر وہ صرف انسانیت کے ناطے ہی مجھے بلا لیتی تو اس کا کیا کم ہو جاتا، مگر اس نے تو الٹا مجھے جھوٹی باتیں بتا کر الگ ہی کر دیا۔ آخر وہ مجھے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہوگی ہے، یا یہ کہ اب اسے میری کوئی ضرورت نہیں رہی؟ میرے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، آواز بھاری ہو چکی تھی اور دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر رشتے اتنے کمزور کب سے ہو گئے کہ دولت کے سامنے ہار گئے۔ میں ابھی بھی ٹوٹے ہوئے خیالوں میں گم تھا کہ میری بیوی نے آہستگی سے میرا کھندا تھاما اور نرم لہجے میں بولی، ایسی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے، یہ سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، اللہ کب کس کا حال بدل دے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ پھر وہ مزید کہنے لگا، تمہاری بہن ابھی نادان ہے، نیا پیسہ انسان کو وقتی طور پر اندھا کر دیتا ہے، مگر رشتوں کی اصل قدر وقت کے ساتھ سمجھ جاتی ہے۔ بہرحال وہ تمہاری بہن ہے اور بہن کے لیے بھائی باپ جیسا سہارا ہوتا ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ رکی نہیں بلکہ نرمی سے سمجھاتی رہی، ہم نے جتنا بھی اس کے لیے جوڑا ہے تم وہ لے جاؤ، اگر اس نے تمہیں اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، مگر تم اپنا حق اور فرض تو ادا کرو اور امی کے پاس ضرور جانا، ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ہمیں نہیں بلائے گی، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ تمہیں غلط تاریخ بتا دے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ، تم ہمیشہ میرے دل کی بات بغیر کہے سمجھ لیتی ہو۔ ہر مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے، پتہ نہیں کیسے تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔
मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हम दोनों हम सफ़र हैं और हम सफ़र एक दूसरे के दुख सुख को महसूस कर लेते हैं। फिर इसने कहा, आप जाएं, मैं तब तक तोहफे इकट्ठे कर देती हूँ। दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं आपके साथ चलूं, मगर गुड़िया की हालत देखकर हिम्मत नहीं हो रही कि इसे छोड़कर कहीं जाऊं। मैंने खामोशी से सर हिलाया, मुंह हाथ धोया और कमरे में वापस आ गया। मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत और बचत से मेरी बहन के लिए चंद कीमती चीजें तैयार की थी। 4 खूबसूरत जोड़े, ये हार और जूतों का सेट। मैंने वो सब संभाल कर उठाया और घर से बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद मैं अपनी बाइक पर सवार था। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, मगर आज हर मोड़ भारी लग रहा था। मेरा घर कच्ची आबादी में था, जबकि अम्मी और बहन ऊंचे इलाके में रहते थे। शायद सिर्फ जगह ही नहीं, हमारे दरमियान फासले भी अब इतने ही बढ़ चुके थे। बाइक पर सवार होकर मैं सीधा इस तरफ निकल पड़ा जहां मेरी माँ और बहन रहती थी। रास्ते भर आंखें बार बार नम हो जाती थी, मंजर धुंधला जाता था, मगर मैं खुद को संभालता रहा। दिल ही दिल में यही सोचता रहा कि शायद यही दुनिया का दस्तूर है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को चाहकर भी सहने पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में मैं इस पोश इलाके में दाखिल हो गया, जहां ऊंची इमारतें और बड़े बड़े घर थे। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स आम लोगों को अंदर आने नहीं देते थे, मगर मुझे पहचानते थे, इसलिए ज्यादा रोक टोक नहीं हुई। मैंने बाइक सीधी जाकर इस बड़े से बंगले के बाहर रोक दी, जो कभी मेरा अपना घर हुआ करता था, और खामोशी से तोहफे वाला सामान उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। हाथों में पकड़े हुए 4 जोड़े, ये हार और जूतों का सेट मुझे इस लम्हे ना जाने क्यों बहुत मामूली लगने लगे थे। दिल में एक अजीब सा यकीन था कि शायद ये चीजें बहन तक कभी पहुंचेंगी ही नहीं, शायद रास्ते में ही कहीं रोक ली जाएंगी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक लम्हे के लिए मेरी आंखें हैरत से फैल गई। पूरा घर निहायत शानो शौकत से सजा हुआ था, हर कोना रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। यह मंजर देखकर मेरे दिल में एक और चोट लगी। इतनी बड़ी खुशी में, इतनी तैयारियों के बावजूद मैं ही गैर जरूरी ठहरा था। मैं खामोशी से आगे बढ़ा। हर तरफ मेहमानों का हुजूम था, खैखखे गूंज रहे थे, खुशियों की आवाजें थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी वीरानी थी। मैं सीधा अपनी माँ की कमरे की तरफ चला गया। मुझे यकीन था कि चाहे वो कहीं भी हो, मेरे आने की खबर इन्हें मिल जाएगी और वो खुद आ जाएंगे। मैं कमरे में बैठकर इनका इंतजार करने लगा। दिल की धड़कन तेज थी और जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और अम्मी अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे पर वाज़ह हैरत थी, जैसे मुझे वहां देखकर वो बिल्कुल साकित रह गई हो। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, मैं फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दिल में उठते तूफान को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए मैंने इनकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। मेरे लहजे में नरमी तो थी, मगर अंदर कहीं एक टूटन भी साफ महसूस हो रही थी। ये वही मुबारकबाद थी जो एक बेटे को खुशी से देनी चाहिए थी, लेकिन आज इसमें दर्द ज्यादा था और खुशी बहुत कम। अम्मी चंद लम्हे खामोशी खड़ी रही, मुझे देखती रही, जैसे मेरे अचानक सामने आ जाने पर यकीन ना आ रहा हो। मैंने आहिस्ता से हाथ में पकड़ा हुआ सामान आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, यह कुछ छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से बहन के लिए। ज्यादा कुछ तो नहीं कर सका, मगर दिल से दिया है। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे बहुत सी अनकही बातें हमारे दरमियान ठहर गई हो। मैं इनकी आंखों में देख रहा था, शायद किसी जवाब, किसी एहसास, या सिर्फ इस लम्हे की अपनायत की तलाश में। मैंने बामुश्किल अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, अम्मी, ये कैसी शादी थी जिसमें आपको अपना बेटा एक लम्हे के लिए भी याद ना आया? मुझे गलत तारीख क्यों बताई गई? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या सिर्फ गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे इस खुशी से ही अलग कर दिया गया? मैंने कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी अपनी तकलीफ का बोझ आप पर नहीं डाला। क्या अगर मैं ऐसा करता तो आप मुझे अपना मानती? क्या तब मेरी बहन मुझे अपनी शादी में जगह देती? ये कहते कहते मेरी आवाज भर आने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी कैफियत देखकर अम्मी बेचैन हो गई। फौरन मेरे करीब आई और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोली, मुझे अंदाजा है तुम्हें कितना दुख हुआ होगा, मगर बेटा मैं भी मजबूर हूँ। मैं खुद इसी के सहारे यहाँ रह रही हूँ। अगर तुम भी जिंदगी में कुछ बन जाते, अपने पाँव पर खड़े हो जाते, तो शायद हालात ऐसे ना होते। वो लम्हा भर को रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हारी बहन भी क्या करती? इतने लोग आए हुए थे, इसके ससुराल वाले, इसके जानने वाले। अगर सब तुम्हें देखे
तो तरह तरह की बातें बनते। इसीलिए इसने फैसला किया कि तुम्हें इस तकरीब में शामिल ना किया जाए। लेकिन तुम दिल पर मत लो, कल वलीमा है, तुम जरूर आना। मैं खुद देख लूंगी। अगर इसने कोई गलत रवैया दिखाया तो आखिर तुम इसके भाई हो, तुम्हारा होना जरूरी है। फिर उन्होंने खदरे नरमी से कहा, वैसे भी खानदान की कई लोग तुम्हें याद कर रहे थे, तुम्हारा जिक्र हो रहा था। इसे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो और इस बात को दिल पर मत लो। और हाँ, तुम्हारी बेटी की तबीयत अब कैसी है? तुम्हारी बीवी ने फोन किया था, मैं फिक्र में थी। मैंने इनकी बात सुनी मगर कोई जवाब न दिया। दिल में यह खलश थी, अगर वाकई फिक्र होती तो वो खुद देखने जरूर आती। खामोशी से मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान इनकी तरफ बढ़ा दिया, चंद जोड़े ये हार और जूतों का सेट, और धीमी आवाज में कहा, ये मेरी तरफ से है, जितना मेरे बस में था मैं ले आया, आप इसे दे दीजिएगा। फिर मैंने नजरें झुकाकर इतना ही कहा, मैं वलीमे में जरूर आऊंगा, आखिर वो मेरी बहन है। मैंने अभी अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि अम्मी के लहजे में अचानक सख्ती आ गई। वो खदरे तंजिया अंदाज में बोली, जब तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी तो फिर क्यों आ गए? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है इसके पास, वो अपने जोर पर सब हासिल कर चुकी है। तुम्हारे बाप ने भी कुछ खास नहीं किया और तुमने भी नहीं। अब मैं क्या कहूँ? इनके अल्फाज तीर की तरह दिल में उतरते चले जा रहे थे। मैं जानता था कि वो मुझे ताना दे रहे हैं, मगर मैंने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर ना होने दिया। जब्त करते हुए बस इतना कहा, जी अम्मी, मैं समझ सकता हूँ, आप भी माँ हैं, बेटे के सहारे हैं, इसी के साथ देंगे। मैं कोई बहस नहीं कर रहा, आप बस इससे बात कर लीजिएगा कि कल कोई मसला ना हो। मैं वलीमे में आ जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहुंचूं और तकरीब पहले ही खत्म हो चुकी हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ नरम पड़ी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो कार्ड, इस पर सब कुछ लिखा है, तुम आ जाना, मैं इससे बात कर लूंगी। ये कहते हुए उन्होंने दराज से एक खूबसूरत सा कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने जब इस कार्ड पर नजर डाली तो एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वलीमे की तकरीब एक निहायत आलिशान जगह पर रखी गई थी। इससे साफ जाहिर था कि मेरी बहन ने जिस घर में कदम रखा है वो दौलत और हैसियत में बहुत आगे है। मैंने अम्मी से इजाजत ली और बाहर आ गया। अभी मैं थोड़ी ही दूर निकला था कि सामने से एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। मेरी नजर बेअख्तियार इस पर पड़ी। वो मेरी बहन थी, अपने शौहर के साथ। शायद वो अम्मी से मिलने आई थी। दिल एक अजीब कश्मकश में उलझ गया। एक लम्हे को सोचा कि रुक जाऊं, इससे मिल लूं, आखिर वो मेरी बहन है। मगर फौरन ही कई खदशात दिल में उभर आए। क्या वो मुझसे मिलना भी चाहेगी? कहीं मेरी मौजूदगी से नागवार ना गुजरे। कुछ लम्हे सोचने के बाद मैंने अपनी बाइक मोड़ी और दोबारा इसी घर की तरफ चल पड़ा। बाहर गाड़ी खड़ी की और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। लॉन्च में दाखिल होते ही देखा कि सब लोग एक जगह जमा है। मेरी नजर जैसे ही दूल्हे पर पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो उम्र में मेरी बहन से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था, तकरीबन दुगना। ये देखकर मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे। क्या इसने वाकई अपने खुशी से एक फैसला किया होगा? दिल मजीद बोझल हो गया, मगर मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। इतने में अम्मी की नजर मुझ पर पड़ी और इनके चेहरे का रंग बदल गया। साफ महसूस हो रहा था कि वो नहीं चाहती कि मेरा सामना इस मौके पर हो। एक लम्हे के लिए मैं रुका। दिल ने कहा कि वापस लौट जाऊं, बिला वजह कोई नई बात खड़ी हो जाएगी, मगर फिर ना जाने क्यों मैंने अपने कदम नहीं रोके और आगे बढ़ता चला गया। मैं चंद कदम के फासले पर आकर रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर इसे आवाज दी, तबस्सुम, क्या तुमने अपने भाई से नहीं मिलोगी? मेरी आवाज सुनते ही वो चौंक कर पलटी। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, इसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा साफ झलकने लगा। मैं कुछ कहना ही वाला था कि वो तेज लहजे में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अम्मी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मैंने तो इन्हें साफ मना किया था कि तुम्हें इत्तला ना दी जाए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस शादी का हिस्सा बनो। इसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया, मगर मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे एक बार गले भी नहीं मिलोगी? तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, क्या मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हें मुबारकबाद दे सकूं? मानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं कर सका, मगर मोहब्बत तो हमेशा की है, आज भी है और हमेशा रहेगी। मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि वो बेरहमी से बोली, तुम ना मेरे लिए कुछ कर सकते हो, न कर पाए हो, बस मेरी इज्जत को लोगों के सामने कम करवा सकते हो। अब यहाँ से चले जाओ, तुमने देख लिया, मिल लिया, अब मस्जिद रुकने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, ना तुम्हारा, ना तुम्हारे बाप का। इसकी यह बात सुनकर यूं लगा जैसे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो।
वही बहन जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया था, आज वही मुझे अपने घर से जाने का कह रही थी। मेरी नजर बेइख्तियार इसके शौहर की तरफ गई, जो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। एक लम्हे के लिए दिल में अजीब सा एहसास जागा, जैसे मैंने इसे कहीं पहले भी देखा हो, मगर मैं इस ख्याल को झटक कर खामोशी से पलट गया। जब वो खुद ही मुझसे मिलना नहीं चाहती थी तो मैं वहां रुककर और क्या कहता। मैंने बिना कुछ कहे बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर आंखों से आंसू बहते रहे। बाज़े औक़ात एक मर्द भी टूट जाता है जब अपने ही इसके खिलाफ खड़े हो जाए, जब इसकी मजबूरियों का मजाक बनाया जाए। रोते रोते जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो खुद को संभाला, आंसू साफ किए और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही बाइक की आवाज सुनाई दी, मेरे दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर आ गए। इनके चेहरों पर खुशी थी, मगर मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। अपनी बेटी को अपने कदमों पर खड़ा देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा दुख मिला। चंद लम्हों के लिए यूं लगा जैसे मेरे अंदर का सारा दुख कहीं दब गया हो। मैं जल्दी से बाइक से उतरा और इसे अपनी बाहों में भर लिया। इसके माथे पर प्यार किया, जैसे अपनी सारी थकन और तकलीफ इसी लम्हे में भुला देना चाहता हूँ। वो मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोली, पापा, मामा कह रही थी आप दादी के घर गए थे, हमें भी साथ ले जाते ना। फूफू की शादी हो रही है, हम भी इन्हें मुबारकबाद देते और मैं इन्हें चॉकलेट भी देती। इसकी बात सुनकर एक बार फिर मेरी आंखें भीगने लगी, मगर मैंने फौरन खुद को संभाल लिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे दिल का बोझ महसूस करें। खामोशी से मैंने इसे गोद में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ गया, अपने दर्द को दिल के किसी कोने में छुपाते हुए। मेरी बीवी नमाज में मसरूफ थी। ये इसकी सबसे खूबसूरत आदत थी कि वो कभी नमाज नहीं छोड़ती, और इसी आदत की वजह से हमारा छोटा सा घर यह खुशियों से भरा माहौल रखता था। मगर आज मेरा दिल बेहद उदास था। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गया। बच्चे छोटी छोटी बातें करते रहे, मगर मैं सिर्फ हाँ या ठीक है कहकर जवाब देता रहा। मेरा दिल और दिमाग मुकम्मल तौर पर मेरी बहन की बातों और इसके रवैये में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बच्चों को हकीकत बता दूं तो इनके दिल पर क्या असर पड़ेगा। आज वो मकाम हासिल कर चुकी है, और अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैं इसकी शादी में नहीं था तो इनके दिल पर क्या गुजरती। मेरा दिमाग बार बार मुझे यही कह रहा था कि तुमने अपने बहन के शौहर को कहीं देखा है, मगर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा था। कुछ लम्हों बाद मेरी बीवी ने नमाज मुकम्मल की और सबके लिए खाना तैयार करने के बाद हमारे पास आकर बैठ गई। वो फौरन मेरी आंखों से मेरे दिल की कैफियत समझ गई। बच्चों को दूसरे कमरे में भेजकर वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि इसने आहिस्ता कहा, जानता हूँ तुम्हारी बहन से तुम्हारा दिल बोझल है, तुमने लिबास और वैसेट दे दिया है ना। मैंने सर हाँ में हिला दिया। वो थोड़ा सा रुक कर बोली, वलीमा कब है, या फिर वो भी गुजर गया। मैंने संजीदगी से कहा, कल वलीमा है, मगर मेरा इरादा जाना नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं करती, मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करती है। मेरी बीवी ने खामोशी से मुझे देखा, जैसे मेरे अंदर की पूरी कैफियत पड़ रही हो। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मगर मेरे पास वसाइल इतने नहीं कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। मेरी बहन, ये सोचकर मेरा दिल और भी भारी हो गया और मैं खामोशी से अपने अंदर के दुख के साथ बैठा रहा। मैं खामोशी से अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। दिल भारी था और आंखों में एक अजीब सी थकन थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने वाकई अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की थी। मैंने फैक्ट्री से 3 लाख रुपए के खर्च के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर मालिक ने साफ मना कर दिया। वो रकम भी इतनी बड़ी नहीं दे सके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी इज्जत और अपनी मेहनत दांव पर लगा दी, मगर बहन ने शायद ये सब समझने की जहमत भी नहीं की। मेरी बीवी ने मेरी करब को महसूस करते हुए आहिस्ता से कहा, आपने अपनी बहन को अपनी कुर्बानी के बारे में क्यों नहीं बताया? जब तक आप अपने दिल की बात इस तक नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको अपने दिल से कबूल नहीं करेगी। दुनिया की हकीकत यही है कि जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते और वह हमारे लिए कुछ सोचता ही नहीं, ताल्लुकात कभी कायम नहीं रहते। भाई बहन, माँ बाप, हत्ता कि औलाद भी। हम जब तक अपने किए हुए काम और कुर्बानियों का इजहार नहीं करते, वो हमें अपना कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा बेहतर यही होगा कि तुम अपने हालात और अपने हालात इसके सामने खुलकर बयान करो। शायद इसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो जाए। मैंने फौरन कहा, मैं चाहता हूँ कि कल इसका दिन खुशियों से भरा रहे। मैं इसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता। वो अभी बहुत मासूम है, अपनी जिंदगी की हकीकत से वाकिफ नहीं। मेरे जहन में ये भी चल रहा था
कि इसने अपनी उम्र से दुगने उम्र के एक मर्द से शादी की है, और इस मर्द को देखते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हो, मगर इसकी शक्ल और रवैये में एक शातिराना मुस्कुराहट थी जो मुझे बिल्कुल भी खुशगवार नहीं लगी। मेरा दिल एक ही वक्त में परेशान और मोहतात हो गया था। ये एहसास कि शायद ये आदमी मेरी बहन के लिए दुरुस्त नहीं मेरी सोच में बार बार घूम रहा था। मेरा दिमाग एक तूफान की मानिंद था। हर सोच में मेरी बहन, इसका शौहर और मेरी कुर्बानियों का हिसाब गर्दिश कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो मर्द मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है और मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, मगर क्यों? यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरी बीवी ने मेरी हालत देखकर नरम लहजे में कहा, आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दें। तुम्हारी बहन ने जो किया वो इसकी अपनी सोच है। दुनिया ने इसे देख लिया और शायद वो तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम बस अपने रिश्ते को देखो और एक भाई होने की हैसियत से सही फैसला करो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। छोटी को अम्मी के पास छोड़ दो। मैंने सर हिलाकर कहा, इसकी जरूरत नहीं, कल मैं खुद जाऊंगा। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपनी बहन को अपनी कुर्बानियों के बारे में जरूर बताऊंगा। वो जान ले कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानियां दी हैं और अपनी पूरी जिंदगी के फैसले इसके लिए वक्फ किए हैं। मेरी बात सुनकर बीवी ने सर हाँ में झुका दिया। फिर मैं खामोशी से सो गया। रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दिल में फिक्र के साथ मेरी नींद अधूरी थी। मेरे बेटे की तबीयत भी दुरुस्त नहीं थी और मैं सोच रहा था कि कल अपनी बहन के सामने हकीकत कैसे बयान करूंगा। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। सुबह की सूरज के साथ ही मेरी बीवी ने मुझे बताया कि इसने वो तमाम रसीदें तोहफे में रख दी हैं। जब तुम्हारी बहन ये रसीदें देखेंगी, इसे खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुम दोनों की जिंदगी में कितनी तब्दीली आ चुकी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बेटी को प्यार किया और बीवी को हिदायत दी कि वो इसका ख्याल रखे। फिर मैं काम पर गया, मगर दिल नहीं लगा। दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे घर वाले मुझे पूछते भी नहीं। हाँ, मेरी माँ को मेरी हकीकत मालूम है, मगर इसके बावजूद दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं। दिल बोझल और भारी महसूस हो रहा था। आज शाम मेरे लिए खास थी क्योंकि भाई का जश्न होना था। दिल में एक अजीब सा ख्याल घूम रहा था, फूफो की शादी और हालात की तकलीफें। मेरी बीवी ने पहले ही मेरे लिए लिबास तैयार कर दिया था। कॉटन का सूसिया लिबास निहायत खूबसूरत लग रहा था। मैंने एक नज़र इस पर डाली और दिल में एक मिक्स जज्बात का तूफान महसूस किया। बच्चे अपनी फूफो की शादी में ज्यादा खुश थे, मगर मैं इन्हें साथ ले नहीं जा सकता था। इस ख्याल ने मेरे दिल को और भी भारी कर दिया। बीवी ने खाना मुझे दिया जिसे मैंने दिल ही दिल में खाकर हलक से उतारा। दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था और मैं अकेले वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था, मगर घर का छोटा सा कमरा, किचन और बच्चों के लिए बनाया गया छोटा सा कमरा, सब कुछ इस लम्हे मेरे लिए काफी महदूद और दबाव भरा लग रहा था। कुछ देर के बाद मैं खामोशी से बाहर निकल गया और काफी वक्त तक बाहर ही रहा। रात 8 बजे के करीब घर वापस आया। मेरी बीवी ने मेरे लिबास, जूते और चप्पल साफ करके रख दिए थे। मैंने कपड़े बदल लिए, चप्पल पहने और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखा। हालात इतने पेचीदा लग रहे थे कि मेरा होश भी कहीं अधूरा सा लग रहा था। तैयार होने के बाद एक नजर मैंने अपनी बीवी पर डाली जो बच्चों के साथ खामोश बैठी थी। दिल में एक हल्की सी लर्जिश थी, लहजा लड़खड़ा रहा था। मैंने पूछा, लिफाफा कहाँ है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहन के सामने यह हकीकत पेश करनी पड़ेगी, मगर हालात ऐसे करने पर मजबूर कर रहे थे। बीवी ने अलमारी से लिफाफा निकाला और मेरे सामने पेश करते हुए नरमी से कहा, जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हारी बहन को भी हकीकत मालूम होनी चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी के बावजूद बच्चों के होते हुए अपनी बहन के बारे में सोचा। तुमने अपनी बीवी और अपने हालात के बावजूद अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब इसकी मोहब्बत और इज्जत का हक बनता है कि इसे ये मालूम हो कि तुमने इसके लिए क्या किया। भाई भी इंसान होते हैं, इनको भी तकलीफ होती है और ये सब कुछ तुम्हारी बहन को जरूर जानना चाहिए। ये सुनकर मैंने इसे गले लगा लिया और कहा, बच्चों का ख्याल रखना, मैं अभी चलता हूँ। दिल में अजीब सा खौफ और तजस्सुस था। ये नहीं मालूम था कि आज मेरी बहन मेरे साथ कैसा रवैया रखेगी। मैं हॉल के बाहर खड़ा था, दिल धड़क रहा था, मगर कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत ना टूटने दी। आज मुझे अपनी बहन के वलीमे में जाना था, इसकी हकीकत से आगाह होना थी और साथ ही इसे ये याद दिलाना था कि मैंने इसके लिए अपनी जान, अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानियां कैसी दी हैं। हॉल के बाहर बड़े बड़े गाड़ियां खड़ी थी
शायद सब मेरी बहन के दोस्त और रिश्तेदार थे। मैंने खामोशी से अपनी बीवी के साथ अंदर कदम रखा। हॉल बहुत खूबसूरत था, लेकिन दिल एकदम से उदास हो गया। यह मंजर देखकर मैं खुद को छोटा सा महसूस कर रहा था, मगर हिम्मत न हारी। स्टेज पर मेरी बहन अपने शौहर के साथ खुली तस्वीरें खिंचवा रही थी। दिल पर अजीब बोझ था। वो कम उम्र थी और इसने अपने से कई साल बड़े आदमी से शादी की थी। दोनों को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मियाँ बीवी कम और बाप बेटी ज्यादा लगते हैं। ये सोचकर दिल और भारी हो गया, लेकिन मैं जान चुका था कि अब वो अपनी जिंदगी के शरीके हयात है और ये फैसला इसका है। मेरे कदम हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में ये उलझन थी, कैसे मैं अपनी बहन को अपनी कुर्बानियों और मोहब्बत की हकीकत बताऊं। वो लम्हा, वो हाल, वो सब मंजर, दिल अभी भी एक अजीब कैफियत में था और मैं अपने अंदर के एहसासात को संभालते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरा दिल एक अजीब कश्मकश में था। एक तरफ खौफ और शर्म, दूसरी तरफ सच्चाई बताने की जरूरत। बार बार ख्याल आया कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। शायद ये सही नहीं है, मगर बीवी की बात भी दिल में गूंजी। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी इसकी मोहब्बत की हकदार होना चाहिए। तुम्हारी कुर्बानियां छुपी नहीं रह सकती। कम से कम बहन को तो यह हकीकत मालूम होनी चाहिए। मैंने दिल को संभाला और स्टेज की तरफ बढ़ा। वो अपने शौहर के साथ फोटो सेशन में मसरूफ थी, इसलिए अभी इसकी नजर मुझ पर नहीं गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो लोग फोटो सेशन खत्म कर चुके थे। मैंने अपने कदम बढ़ाकर स्टेज पर चढ़ गया। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि वो गुस्से में बदतमीजी करेगी और लोग मुतवज्जा होंगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैं ये तमाशा नहीं चाहता था। दिल चाहता था कि घर और बहन की इज्जत दोनों महफूज रहे। मेरी बहन गुस्से में बोली, यहाँ क्यों आ गए हो? मैंने तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया, फिर क्या देखने आए हो? तुम्हारे यहाँ खड़े होने की भी कोई हैसियत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें यह खत देने और ये रसीदें पेश करने आया हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे सामने खड़े होने की मेरी कोई औकात नहीं, मगर आज तुम्हें हकीकत मालूम होना चाहिए। ये सुनकर इसका गुस्सा भड़क उठा। वो बोली, मुझे किस किस्म की बेहतरी नहीं चाहिए, बस बहुत हो चुका, जाओ यहाँ से। मेरी तकरीब खराब ना करो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैंने साबित खदमी से कहा, आज सच्चाई तुम्हें मालूम हो जाएगी। तुम जितना मुझे दुख दो, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर अपनी हकीकत बताऊंगा। ये सुनकर वो झपट गई और कहा, अभी देखूंगी कि क्या देख सकते हो, तुम्हारी औकात यही है। और फिर वो रसीदें फाड़ पड़ी। अंदर से वो तमाम रसीदें जमीन पर बिखर गई, जो शायद इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। लम्हा मुकम्मल तौर पर हॉल में मौजूद लोगों के लिए हैरान कौन था। दुल्हन बनी जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और हर किसी की नजरें इस मंजर पर जमी रह गई। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक सुकून भी महसूस हो रहा था। वो हैरत और रंज के मिले जुले जज्बात के साथ मेरी तरफ देख रही थी और हर लम्हा रसीदें खोलकर पढ़ रही थी। इसके मुंह से बार बार निकल रहा था, ये कैसे मुमकिन है, ये सब कैसे हुआ? मेरी माँ और मेरे शौहर ने मुझे धोखे में रखा और मेरा अपना भाई। मैंने इसे नरम लहजे में कहा, तुम्हें सच्चाई मालूम हो जाएगी अगर तुम इन रसीदों को गौर से पढ़ो। यह सब तुम्हारे लिए मेरी मेहनत और कुर्बानी का सबूत है। वो चीख रही थी, रोती रही और फिर अचानक झटका सा लगा, जैसे इसके जज्बात ख्वाबों से बाहर हो गई हों। मैं इसके करीब बैठा रहा, इसके हाथ थामे और पूछा, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? इसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। जब मैं अपनी तकलीफ के वक्त तुम्हारे बारे में पूछती थी तो अम्मी ने मुझे यही कहा था कि तुम आए ही नहीं, तुम्हें दखल देना नहीं है, इसलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी। मगर अब मुझे पता चला कि तुमने हमेशा मेरी खातिर सोचा, मेरी मदद की। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का तोहफा दिया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी और बच्चों के बावजूद ये कदम क्यों उठाया? मैंने इसे समझाया, तुम्हें याद है तुम्हें 2 गोलियां लगी थी, वक्त पर इलाज ना मिलता तो हालात बहुत खराब हो जाते। डॉक्टर ने कहा था अगर वक्त पर तुम्हें मुनासिब इलाज न दिया जाता तो नतीजे खतरनाक हो सकते थे। इसकी आंखों में आंसू और हैरत के साथ साथ एक नरमी भी आ गई थी। मैं जान चुका था कि वो अब मेरी कुर्बानी और मोहब्बत की हकीकत समझ रहे हैं और ये लम्हा हमारे रिश्ते के लिए एक नया आगाज था। मैंने इसकी तरफ आहिस्ता से देखा और दिल में सुकून और थोड़ी सी अस्तरब के साथ कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत और खुशी के लिए काम किया है। यही वजह थी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि
तुम्हें बेहतरीन मदद और सहारा मिले। मैंने कभी अपनी कुर्बानी या मोहब्बत दिखाने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि सिर्फ तुम्हारी भलाई और तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए मैंने दिल से इसे बताया। जब तुम्हें मुश्किल वक्त आया, मैंने सबसे पहले हर रास्ता तलाश किया, हर कदम उठाया और दुल्हन के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की। मेरी बीवी ने मुझे हौसला दिया, कहा कि बहन के काम भाई ही करते हैं। तुम्हें ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहा और चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने भाई और मेरे बच्चों को अपना भतीजा और भतीजी समझो। वो तुम्हारे प्यार के तलबगार हैं और तुम्हें अपनी मोहब्बत इन पर निछावर करनी चाहिए। ये सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन जज्बात के उरूज में बगैर कुछ समझे अपने शौहर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं हैरत से इसे देख रहा था और वो गुस्से में बोली, तलाक दो। मुझे ये सब समझ नहीं आया। तुम मुझे धोखे में रख रहे हो, तुम्हारा अपना भाई और फिर ये सब गोल्डा का मामला। मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैंने फौरन इसकी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी माँ ने कहा था ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हें कितनी मोहब्बत और फिक्र से महफूज रखा गया है। ये सब तुम्हारे भले के लिए था और मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि मेरी नीयत सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसलिए हवा में सुकूत और कशमकश थी, मगर मैं जान चुका था कि सच्चाई अब बताई जा चुकी है और अब बस वक्त का था कि दिलों को समझने और कबूल करने का। मैंने खामोशी से इसकी बात सुनी, दिल भारी और आंखें नम हो गई थी। हर लफ्ज में मोहब्बत, खौफ और पछतावे की मकसद जज्बात थे। वो बोल रहा था, तुमने हर बात को अपनी माँ के कहने के मुताबिक समझा, हर फैसले को हरफ आखिर माना। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतरीन हो, लेकिन मैं खुद गर्जी की वजह से तुम्हें तकलीफ दी। तुमसे माफी चाहता हूँ। इसके अल्फाज सुनकर मुझे अचानक वो लम्हा याद आया जब मैं बेहोश हो रही थी और आखिरी चेहरा इसी का देखा था। यही शख्स शुरू से मेरी हिफाजत में था और मैं इसे पहचान नहीं पाई। मेरी बहन ने आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैंने फौरन इसे गले से लगा लिया। दिल में सुकून और रंज एक साथ थे। इसने कहा कि इसके पास अल्लाह की दी हुई बहुत दौलत और ताकत है। इसे किसी अमीर मर्द की जरूरत नहीं, वो खुद सब कुछ कर सकती है। इसने फौरन कानूनी कार्रवाई की, केस दायर किया और इस शख्स की अलहदगी इख्तियार कर ली। मैंने देखा कि वो मजबूत है, अपनी किस्मत खुद लिख सकती है और मैं सिर्फ इसके लिए वहां मौजूद रहकर इसकी हिफाजत कर सका। ये लम्हा हमारे रिश्ते के लिए एक नया आगाज था, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और समझदारी ने सब तकलीफें और गलत फहमियां धीरे धीरे खत्म कर दी थी। मैंने खामोशी से इनकी बात सुनी। दिल में मुखल्लत जज्बात और सुकून का मिलाजुला एहसास था। नादी ने कहा, हम दोनों बहन भाइयों के दरमियान बहुत तकरार हो गई थी और मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी हो। मैंने कभी अपने अल्फाज से तुम्हें नाराज नहीं किया, बस तुम्हारी भलाई चाही। तुम्हारे दिल में शायद किसी का प्यार नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि तुम्हें सही सिमत में रहनुमाई मिले। इसके बाद इसने अपनी माँ और भाई के बारे में भी बात की कि कैसे वो दिल की भड़ास निकालना चाहती थी और कैसे जमीर जान ने अपनी मर्जी से फैसला किया था। नादी ने कहा कि इसकी ख्वाहिश थी कि बहन अपने लिए बेहतरीन हमसफर चुन ले और अब इसने वाकई ऐसा किया है। इसका शरीत हयात इससे 10 साल बड़ा है और दोनों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक है। इसने मेरी जिंदगी में भी सुकून पैदा किया और कहा, जब किसी भाई के पास पैसा होता है तो वो अपनी बहन पर लगाता है और जब बहन के पास होता है तो वो भाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत और कुर्बानी की कीमत तुम्हें मिले, बस तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मैंने महसूस किया कि अब ना सिर्फ मेरी बहन के लिए सुकून और खुशी है, बल्कि हमारे खानदान में मोहब्बत और समझदारी की बुनियाद मजबूत हो गई है। इस लम्हे दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ और सब रंज, शक और कच्ची गलत फहमियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी भी कम नहीं होता। दिल से जो कदर और मोहब्बत महसूस हो, इसी के मुताबिक शुक्र अदा करें। सबसे अहम बात यह है कि अपने हमसफर, अपने खानदान और अपने अजीजों की बातों को समझें, इनके जज्बात की कदर करें और कभी भी किसी के बहकावों में आकर फैसला ना करें। सबूत और समझबूझ के बगैर किसी पर एतमाद करना नुकसानदा हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम अगली बार एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आएंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह का शुक्र कभी भी कम नहीं होता।
दिल से जो कदर और मोहब्बत महसूस हो, किसी के मुताबिक शुक्र अदा करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि खानदान की मोहब्बत, कुर्बानी और ईमानदारी की कीमत कभी भी कम नहीं होती। अपने हमसफर, अपने अजीजों और अपने खानदान के जज्बात को समझना, इनकी कदर करना और बगैर सबूत किसी पर यकीन न करना जिंदगी की सबसे बड़ी हिदायत है। यह कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जिसने कभी कुर्बानी दी और किसी ने इसकी कदर नहीं की। आज अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें, सोचें और अपने प्यारों की कदर करें, क्योंकि कल पछताने से कुछ नहीं मिलता। अगर आपको हमारी कहानी ने दिल छू लिया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आखिर में हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कभी ऐसे लम्हे से गुजरे हैं जब आपकी कुर्बानी को किसी ने समझा ना हो? आपने क्या किया? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय और तजुर्बा जरूर बताएं, हम पढ़कर बहुत खुश होंगे। अगली कहानी में हम आपके सामने लाएंगे एक ऐसा राज जो कभी ना भुलाया जा सके। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।